Hello, hi, and good morning. This is I think this is the fifth or sixth lecture, right? इससे पहले शायद टेस्ट हुआ था आप लोग का, तो उसमें क्लास नहीं हुआ था, इसलिए मतलब एक सप्ताह के बाद हम लोग मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है, राइट? और पहले क्या पढ़े थे? सी दैट हाँ, पढ़े थे पहले KMnO4 का रिएक्शन। और रिएक्शन में क्या होता है? KMnO4 का रिएक्शन, द एडिशन रिएक्शन ऑफ द OH-OH bond in the syn fashion. All right, and this is the redox reaction. And after that, we will study what is the nucleophile and what is the electrophile. All right, इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है और न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो, अच्छा, यहाँ पे समझना ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल। पहले ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे ये समझना है। पहले हम यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? डोनेट्स electrons, and electrophile which accepts electron. फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या होता है? लविंग। एंड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग। एंड एनी स्पेसिस loves the electrons, that means it try to accept the electrons, right? And nucleophile which donates the electron, nucleophile that donates the electron, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग, that's why it is donating the electron, right? Second is which will donate the electron, and it is very clear that electron rich atom or molecules or ions. The species that will donate the electron, if it has the sufficient of the electron, that means we call that species as a electron rich species, and the species can be molecule and ions, right? And electron deficient ion is the electrophile, because when the ion or atoms or molecule are electron deficient, it has the tendency to accept the electron. All right. And let us suppose uh, which ion we can call as a nucleophile. The ion that has the positive charge or negative charge,
Actually, the positive charge is termed as the electrophile, and positive charge why? Because the positive charge ion and positive charge ion example H plus is the positive charge ion and it is electron deficient. So we have to keep the H plus on the side of the electrophile. Okay, and there is also chance of bromine plus is also stable, iodine plus is also stable. That's why bromine plus, iodine plus, all these are the example of the electrophile. And in spite of that, nucleophile, if we consider the ions, nucleophile में अगर consider करते हैं ions, तो Cl minus, right? Cl minus, and that has a negative charge, having sufficient of electron, it can donate the electrons. All right, and that is clearly mentioned in the next line. The negatively charged or the neutral's positive charge of the neutral charge. All right. So nucleophile that will undergo a reaction that is called the nucleophilic substitution and addition and undergo electrophilic addition and substitution. Okay. These are the four kinds of the reaction and we will study after that. And you have to also assume that ions, positive ions is classified as a electrophile and the negative ion that is classified as a nucleophile. But what about the molecules? And of the molecule that is Lewis acid, and the Lewis acid that means Lewis acid has deficiency of electron. If the Lewis acid has the deficiency of electron, we classify that Lewis acid into the category of the electrophile. तो लेविस एसिड कहाँ जाएंगे? हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल की तरफ कौन जाएंगे? द स्पेसिस, द मॉलिक्यूल विच इज लेविस बेस. In spite of that, if you take NH3, NH3 molecule that is neutral, right? NH3 molecule is neutral and it has the lone pair. So the NH3 molecule can donate its electron because it is a Lewis base and we term this NH3 as a nucleophile. And the example of another nucleophile that is NH3, then water H2O, the species the species which can donate the lone pair of electrons, right? In spite of that, the acid which can accept the lone pair of electron like BH3, BF3, all right, all these are the Lewis acid and they act as a electrophile, all right. FeCl3, SnCl2 are the example of the electrophile. Right. This is a very easy point. Now coming to the reaction of alkene, and we have to think how will you do the reaction of alkene with the Br2. All right. So in this reaction, everything is important, right? Suppose this alkene is considered as a this alkene is considered as a nucleophile. Why? Because it has the pi electron. So why this alkene is considered as a pi electron? Because of this pi bond, right? And when the Br, यहाँ पे Br क्या हो रहा है? टूट रहा है.
तो बी आर अगर टूटेगा तो एक बी आर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक बी आर पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान देना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है, किसमें, न्यूक्लियोफाइल में। एक्चुअली द अल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल and there is the electrophilic addition over the nucleophile. Always there is the reaction inorganic reaction. The reaction is totally different from the inorganic reaction. Organic reaction का रिएक्शन डिफरेंट है इनऑर्गेनिक रिएक्शन से। इनऑर्गेनिक रिएक्शन में हम लोग देखते हैं क्या है कि कैटायंस का फॉर्मेशन होता है, कैटायंस के रिएक्शंस होते हैं चारों तरफ इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में क्या होता है, एसिड बेस जैसे रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअली इनऑर्गेनिक में देखोगे प्रॉपर बॉन्ड टूट करके रिएक्शंस हो रहा है, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होता है, बॉन्ड टूटता है वो क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, ठीक है। एक उसको बोलते हैं हम लोग एसिड बेस रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। और एसिड बेस रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि आ, कोई एक पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट एसिड बन जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एसिड बेस, एसिड एसिड रिएक्शन नहीं होता है, बेस बेस रिएक्शन नहीं होता है। और जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिएक्शन नहीं होता है। इसको याद रखना है। देन आफ्टर दिस इज वेरी इजी थिंग, राइट। दिस Br प्लस विल मूव टुवर्ड्स, इसका Br प्लस यहाँ पे टूटेगा और Br प्लस और ये दोनों के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। मतलब दिस डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड स्प्लिट, ये जो डबल बॉन्ड है स्प्लिट हो जाएगा और दो एक Br के साथ क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये जो Br है ये क्या करेगा, स्प्लिट हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये Br के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, राइट। और दिस बॉन्डिंग, और मैं एक दिन आपको बताया था इस टाइप के जैसे बॉन्डिंग होते हैं तो इसको और याद रख लीजिए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, ऑलराइट। एंड द Br मॉलिक्यूल, जो Br मॉलिक्यूल है यहाँ पे ये तो खाली बैठे हुए हैं, Br मॉलिक्यूल तो खाली बैठे हुए हैं, है ना। वो बोल रहे हैं हम कहाँ जाएं, ठीक है। तो जहाँ पे Br गया है तो बोलता है रुको मैं देखता हूँ व्यवस्था क्या है, ठीक है। लेकिन Br मॉलिक्यूल तो बोले कि हम तो ऊपर में है ना, मैं फ्लोर के ऊपर में हूँ, ठीक है। तो तुम ऊपर से नहीं आओ, तुम क्या करोगे, नीचे से आओगे, ठीक है। सी हियर द Br molecule that is above and this Br molecule is asking that I have to come. Then the Br molecule said, रुक जा, let us see, तुम ऐसा करो पीछे से आओ, पीछे के दरवाजे से आओ, ठीक है ना, नहीं तो कोई देख लेगा, ठीक है। तो Br molecule यहाँ पे देखो, आई थिंक यहाँ पे R होगा, Br, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, ढक गया है ना Br, ओके। तो Br molecules that comes from कहाँ, पीछे से आया वो, पीछे के दरवाजे से आ गया, ठीक है। एंड the Br molecule is located at the down floor, right? And this type of addition is called as the anti-addition, all right? Anti-addition, and the enantiomer can be produced by taking the mirror image of that, all right?
बस क्या याद रखना है इसमें, ब्रोमीन का जब रिएक्शन होगा तो जो अल्कीन विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, bromine behave as a electrophile, formation of the non-classical carbonation, and the attack of the another Br minus is from the backside. All right, and from the backside the attack, and it looks like the addition is anti-addition. Will you able to understand? Okay. Now coming to the characteristic of the reactions, ये सारे हम reactions पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br. फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन RDS को देख लेना है, गुड. ओवरऑल मैकेनिज्म इज एंटी एडिशन, वेरी गुड. अनसैचुरेशन का टेस्ट सर, ब्रोमीन वाटर, हाँ ब्रोमीन अनसैचुरेशन का टेस्ट है, ठीक है, Br2C CCl4 के वजह से, ठीक है. Now coming to and I have told you that alkene behave as a nucleophile, right? एक मैं बच्चों को क्वेश्चन देता हूँ, मतलब हर बैच में एक क्वेश्चन दिया हूँ कि alkene behave as a nucleophile, right? And alkyne is also the nucleophile. Alkyne is also the nucleophile, and alkene is also behaving as a nucleophile. But in the reaction, alkene is more nucleophilic than the alkyne. Why? Question mark. Alkene एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है rather than alkyne, and बताना इसको, इसका आंसर क्या है, ठीक है, क्यों. अच्छा, अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन कौन होगा. पाई बॉन्ड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन इंक्रीज करेगा, एंड द रीजन इज +m +h हाइड्रोजन. ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल होना है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा चाहिए इसको, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले भी तो ग्रुप होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट, +H +m and +I, and all these enhance the nucleophilicity of the alkene. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन आ जाएगा रेट को लेकर के, किसका रेट ज्यादा है. एंड if you see, this alkene has more alpha hydrogen than this alkene, and this alkene is also more alpha hydrogen than this alkene, and the reason behind this alkene is this alkene have more alpha hydrogen because it has more stable, and +H हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे COOH जो आ गया, COOH बिहेव्स लाइक अ -m ग्रुप. -m ग्रुप चलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की चलेगा. हमको क्या करना है कि अल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है, COOH लगा देंगे, दैट COOH इज द -m ग्रुप, and it decreases the nucleophilicity of the alkene. Nucleophilicity of the alkene, and the thing is that do not try to compare the hydrogenation reaction with the stability of alkene, because the alkene which is least stable, right, that is more reactive towards the hydrogenation, as we have studied in the previous class. So there is a chances of the mismatch, but in this case there is electrophilic addition reaction, and this reaction is different. सारा रिएक्शन का स्टाइल डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना. तो साइंस में एक्सट्रीम चीज है, तो एक्सट्रीम चीज होता नहीं है कभी, ठीक है. मतलब
जनरलाइज थ्योरी होता नहीं है ऐसा कुछ कि जनरलाइज थ्योरी पढ़ लिए उसी से सब कुछ हो रहा है ना। एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर बोल दे कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड, नहीं मतलब कि कसम खा लिए हो कि बोलना ही है, ठीक है। सबको हम सॉलिड बोल देंगे, सॉलिड बोल देंगे, होता है, लिक्विड भी होते हैं मेटल, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन में बोल रहा हूँ सब, ठीक है। सब बच्चे तेज है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स कम्स टू ब्रोमीन। ये ब्रोमीन देखो, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, ये कलरलेस है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, दैट इज द कलरलेस, ऑल राइट। इन एंजियोमरिक, अच्छा यहाँ पे देखना है कि ब्रोमीन कैसे ऐड होगा बच्चा, एंटी एडिशन, ऑल राइट। ब्रोमीन ऐड लाइक एंटी एडिशन, राइट। तो एंटी एडिशन हो गया यहाँ पे, बी आर इन बी आर का क्वेश्चन क्या एंटी है। अब इसका तुम मिरर इमेज ले लोगे, ये बन जाएगा तुम्हारा। एक बार आइसोमेरिज्म पढ़ा दिए तो बस वही चीज देखो रिपीट हो रहा है तुम्हारा, कुछ नया चीज नहीं। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कहीं लिख लेना, और ये फॉर्मूला तुमको बता रहे हैं, मतलब जीवन भर काम देगा, ठीक है, लाइफ टाइम। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला कि सिस में अगर सीन एडिशन करेंगे तो सिस मतलब सीधा, सीन मतलब भी सीधा, दैट विल जनरेट मेजो। एक बार उल्टा वाला काम कर लेते हैं, फ्रांस में एंटी एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा मेसो, बस। एंड ट्रांस में अगर एंटी एडिशन करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे सिक्स होगा, थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द सिक्स, ठीक है, ऑलराइट। ओके, अब सही है। सिक्स में एंटी एडिशन करेंगे तो बीएल, ट्रांस में सिन एडिशन करेंगे तो डीएल। डीएल का मतलब क्या हो गया कि एक मतलब इनैंसियोमेरिक फॉर्म, द फॉर्मेशन ऑफ द इनैंसियोमेरिक फॉर्म, ऑलराइट। इसमें सिस में एंटी एडिशन करने से डीएल बनेगा, मतलब दो कंपाउंड बनेंगे, एक डी होगा तो दूसरा क्या होगा, एल होगा, और मेजो एक ही कंपाउंड बनेगा, तो वी विल सी दैट रिएक्शन, ऑलराइट। एंड ब्रोमीन का एडिशन क्या है, द एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज एंटी एडिशन है। ब्रोमीन का एडिशन क्या है, एंटी एडिशन है। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज द सिस, सिस में क्या कर रहे हैं, एंटी एडिशन कर रहे हैं, तो देखो कहाँ पे मिल रहा है, सिस में एंटी एडिशन इज दिस, ठीक है। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, आई थिंक रेड इज वेरी गुड कलर। तो डीएल का मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड, एक डी हो गया, हो सकता है एक हो जाएगा एल, समझ आ गया? मतलब मिरर इमेज बनने का चांस है, ठीक है। दो कंपाउंड, मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज सेम है, डीएल बन सकता है, मिरर इमेज बन सकता है, दो कंपाउंड बनेगा, बस समझ आ गया ना? सबका मतलब क्या है, सेम है। नेक्स्ट याद रखना है, डबल बॉन्ड में ही रिएक्शन होता है इनका, ऑलराइट, साइक्लिक अल्केन में नहीं होता है। और याद करो ब्रोमीन का रिएक्शन एचमीओ के साथ होता है तो ब्रोमो अल्केन बनता है, एंड दैट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द रिएक्शन, ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट इज द बेंजीन में कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। बेंजीन में होता है रिएक्शन, लेकिन
बेंजीन का रिएक्शन दैट इज वेरी डिफरेंट इन प्रेजेंस ऑफ FeBr2 and this is called electrophilic aromatic substitution, and this types of the reaction we will study afterward, right? Then अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ट्रांस में एंटी एडिशन मेजो। अब जरा चेक करो लिस्ट को, मेजो है क्या? ट्रांस में एंटी एडिशन से मेजो, हाँ देखो, ट्रांस में एंटी एडिशन से क्या हो रहा है? मेजो हो रहा है, राइट? हाँ जा भाई। Alright. और सिस में एंटी एडिशन से क्या होगा? सिस में एंटी एडिशन से क्या होगा? डीएल मतलब इसका, ये जो मिरर इमेज में एक और कंपाउंड, ये तुम लोग क्लेम छोड़ दिए हैं, तुम लोग बना दोगे, एंड दैट इज द इनैंसियोमर ऑफ दैट कंपाउंड। KMnO4, अच्छा, KMnO4 कौन सा एडिशन होता है बता दो भाई? KMnO4 होता है सिन एडिशन। सिन एडिशन किसका होता है? OH का होता है। ये पिछले क्लास से मैं क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है? सिन एडिशन ऑफ OH, OH, राइट? गुड। OH का क्या हो रहा है यहाँ पे? सिन एडिशन हो रहा है, ठीक है? तो ट्रांस में सीन, देखो सीन मतलब क्या होता है? सीधा, राइट? सीन मतलब क्या होता है? सीधा। और ट्रांस मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है? तो सीन समझो, तो सीन एडिशन में समझो, सीन को सीधा दो, सीन को सिस दोगे, मेजो बनेगा। दैट इज एग्जांपल। सीन को सिस को सिन दोगे तो मेजो बनेगा। देखो यही ऐसे ही करके याद हो जाता है, ठीक है ना? तो ट्रांस क्या है? उल्टा है। तो उल्टा को क्या दोगे? उल्टा दोगे, उल्टा को उल्टा देने से क्या हो जाएगा? मेजो बन जाएगा। सीधा को सीधा देंगे तो क्या हो जाएगा? मेजो बन जाएगा। तो मेजो को समझो, सब हो जाएगा एक साथ। अरे भाई, मेजो अगर समझ में आ गया तो तुम थोड़े जो भाई डीएल भी रटोगे, है ना? अब तुम्हारे पास अगर एक लेफ्ट हैंड का ग्लव्स है, ठीक है, तो राइट हैंड का ग्लव्स कहीं दूसरी जगह पे होगा, ठीक है ना? वो स्पूकी एक्शंस वाला क्वांटम का पार्ट है ये, कोई मतलब नहीं इसका। नेक्स्ट है अल्काइन H2PdBSO4। आपके पिछले क्लास में ये सब क्वेश्चंस थे। ए से बी बनाना आसान है। ए दैट इज, अच्छा, H2PdBSO4 is a linear catalyst and sodium liquid ammonia, sodium liquid ammonia, it gives, अच्छा, H2PdBSO4 will give you cis alkyne and the Na liquid ammonia will give you trans alkyne। गलत, अल्काइन नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। H2PdBSO4 will give you cis alkene, Na liquid ammonia will give you trans alkene। अभी ट्रांस का सारा रिएक्शन पढ़े, Br2CCl4 के साथ, KMnO4 के साथ, D2NI। D2NI क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। D2NI एक कैटालिटिक रिएक्शन है, और कैटालिटिक रिएक्शन क्या होता है? सिन एडिशन होता है। इसको मैं करवा चुका हूँ, आप इसको देख लोगे, ठीक है? जो बी बना यहाँ पे दैट इज ट्रांस अल्कीन, यहाँ पे भी सारा रिएक्शन सेम है, और इसको फिल करके तुरंत भेजें। नेक्स्ट इज द, देखो एक बार क्या है ना, फंडा समझ जाओगे, यही सब बुक्स में मिलेगा, ठीक है? अभी तुम लोग जो पढ़ लोगे ना,
तुम क्या करोगे इसके बाद, बुक्स पढ़ोगे तो बुक्स में तुमको समझ में आ जाएगा कि बुक्स बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, ब्रोमीन CCl4, क्या होगा ये भाई साहब, ब्रोमीन ब्रोमीन एंटी एडिशन, ब्रोमीन ब्रोमीन एंटी एडिशन, दोनों आपस में इनैंसियोमर रेसमिक मिक्सचर। अब बोलोगे कि सर ये क्या रेसमिक मिक्सचर होंगे, हम बोलेंगे भैया होंगे, इसको मिरर इमेज ले लो तो भाई यही बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए सर, come to here. In this case, bromine is added to the anti-anti and the formation of one bromine here, one bromine here, one bromine here, one bromine here. And these two are not the mirror image. And you cannot ask me this, why these are the mirror image. All right. They are not the mirror image. ये mirror image नहीं है. They, so why these are the distereoisomer. अब देखो, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, ठीक है, एक बार में तुम्हें समझ लेना है। इसका तुम मिरर इमेज लोगे, रोटेट करने के बाद ये नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये खुद करना है आपको, बताना है कि वो डाया है कि रेसमिक है कि इनैंसियोमर, ये डाया है कि इनैंसियोमर है। ठीक है, हेलो हाइड्रोजन रिएक्शन, हेलो 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 हाइड्रोजन रिएक्शन, लो भाई ध्यान देना, ये है हेलो हाइड्रोजन रिएक्शन। मैं बोल रहा हूँ, सुनो पहले, ब्रोमीन और H2O टूटेगा ना तो बनता है Br प्लस कॉमा OH माइनस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेलो हाइड्रोजन जो रिएक्शन है, जो पहला जो रिएक्शन किए थे Br2CCl4 तक, ब्रोमीन में जो प्लस बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, राइट, क्या बना, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे कौन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। क्लियर हो गया। रहा बात कि Br2 और H2O का जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो HOBr बनते हैं, इसको याद रखना है। Br2, when Br2 react with H2O, it forms HOBr, and the OH is in the negative state and Br is in the positive state. Br plus forms the non-classical carbocation, and similarly non-classical carbocation that is formed, and the OH minus is trying to react with this molecule. OH minus जो है वो बाहर है, ठीक है, और अब यहाँ पे कंडीशन इज वेरी डिफरेंट। ब्रोमीन, सपोज ब्रोमीन ऊपर फ्लोर में है सपोज, ठीक है, एंड देन OH ट्राई टू कम, ठीक है, लेकिन OH के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीज समझना पड़ेगा। पहला चीज है कि OH कम्स फ्रॉम बैकवर्ड साइड, ठीक है, घर के पीछे से आएगा वो। ब्रोमीन ऊपर में है, OH कम्स फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, ठीक है। दूसरा चीज, OH कम्स टू स्टेबल कार्बोकेटायन। OH कहाँ पे आएगा, स्टेबल कार्बोकेटायन पे, जहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ गया, दो पॉइंट।
OH बैक साइड से आएगा, OH वहां पे अटैक करेगा जहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब देखोगे OH है यहाँ पे जो दिख रहा है OH, it comes to that side where there is the formation of a stable carbocation, because यहाँ पे जो stable carbocation रहेगा that will be stable। बस ठीक है, इस चीज को कहानी की तरह समझो, ठीक है ना। इतना इजी से कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है, बुक्स भी पढ़ लो, है ना। अभी देखो रिएक्शन करेंगे तो फायदा क्या है, ध्यान देना। HOCl, अब ध्यान देना, HOCl टूटेगा OH माइनस में, ये तो कर लिए हैं, OH माइनस में और Cl प्लस में। और ध्यान देना Cl प्लस विल फॉर्म द नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, and the Cl plus that is in the top floor, which comes घर के पीछे से, and it will attack where there is the formation of a stable carbocation. If you see in this stage there is the formation of 2 degree carbocation, मतलब यहाँ पे देखोगे 2 degree carbocation बन रहा है, that's why the OH will attack here, right? If you take IBr, अच्छा IBr में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, हाउ विल यू डिसाइड? एक्चुअली द इलेक्ट्रोनेगेटिव atom, more electronegative atom will acquire negative charge. So in iodine and bromine, the bromine is more electronegative, so why Br minus is created here and I plus is created. आयोडीन में पॉजिटिव आ जाएगा, Br में क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अच्छा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन कौन बनाएगा, दैट इज द I प्लस। I plus is at the top floor, Br minus comes from the back side, and where Br minus will attack where there is the formation of a stable कार्बोकेटायन। मैं एक चीज बताया हूं उससे 10 चीज का आंसर आ रहा है। कमिंग टू द BrCl, सपोज BrCl में ध्यान देना, which will positive, which will negative, Br that is positive, Cl that is negative, right? And the Br forms non-classical carbocation above the house, right? Above the house, Br plus, and the Cl minus comes from the back side, and it will attack to the stable carbocation। क्लियर हो गया? अभी ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा जेईई मेंस में, सपोज, या तो नीट में ये सब डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, तो फिर बना लेना, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इज द, that is a very interesting reaction, right? And if you read this reaction, it looks like maybe some German chemist or Russian chemist, right? Prilegev reaction. Let me start. बस फिर से स्पेलिंग करते हैं। Prilegev, Prilegev reaction, Prilegev reaction, and in India, if there are 20 lakh chemists, they will pronunciate it into 2000 ways, ठीक है। Prilegev reaction। अरे 1 मिनट, 1 मिनट सर, एक और काम करते हैं इसमें थोड़ा सा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है, बस तब जाके रिएक्शन होगा। याद क्या रखना है इसमें कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू इपॉक्साई, डबल बॉन्ड is converted into epoxide, and what is this, CH3CO3H, तो फॉर्मूला गड़बड़ हो गया।
There is a mistake in the formula. I think no, there is no mistake. If you have studied, that is a CH3CO2A. The class 10 में पढ़े थे, that is the acetic acid. But one oxygen here is the one oxygen. So in the this is called peracetic acid, right? This is not acetic acid. This is peracetic acid. जब मैं एक चीज बताऊंगा कि पर एसिटिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? पर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन लगाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तब वो पर सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो पर एसिटिक एसिड मतलब क्या है कि एसिटिक एसिड में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दोगे, दैट विल बिकम पर एसिटिक एसिड। देखो, मॉलिक्यूल्स में ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, राइट? पर एसिटिक एसिड में ही एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन में तो क्या करेगा? वो एक्स्ट्रा तो अपने पास रखेगा नहीं, एक्स्ट्रा तो अपने पास रखेगा नहीं, है ना? तो वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है यहाँ से, यहाँ से हल्का सा काट देते हैं, दो भाई, ऐसे नहीं, ऑक्सीजन को मैं काट देता हूँ 1/3। तो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है ना, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विल कम। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाना भी जरूरी है, ठीक है? ऑलराइट, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है इसके पास, इसको दे देगा, डबल बॉन्ड को दे देगा। क्लियर हो गया? डबल बॉन्ड विल सेटिस्फाई विद द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट जो जिसके पास जो एक्स्ट्रा था, वो एक्स्ट्रा क्या हो गया? खत्म। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड इपॉक्साइड। ये क्या है तुम्हारा? इपॉक्साइड। और ध्यान देना, इस इपॉक्साइड में एक और इपॉक्साइड बन सकता है। ये जो ऑक्सीजन है, सपोज ऑक्सीजन तुमको फर्स्ट फ्लोर से अटैक किया है, ठीक है? हो सकता है एक ऑक्सीजन आपको ग्राउंड फ्लोर से अटैक करते, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक और बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस रिएक्शन का नाम क्या है। इसमें हम लोग CF3CO3H2 लिख सकते हैं, H2O2 लिख सकते हैं, HCO3 क्या है आप बताओगे? HCO3 इज द पर पर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लगा दोगे, नो, आई थिंक दैट विल बी H2CO3। ओके, so write it। 1 minute। HCHCOOH होता है, ठीक है? HCOOH होता है, दैट इज द फॉर्मिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन लगा दो, एंड द फॉर्मूला इज H2CO3, राइट? द फॉर्मूला इज H2CO3। बस इतना याद रखना है कि पर वाले जितने भी एसिड हैं, जैसे पेरोक्साइड भी पर एसिड ही एक तरह से बोल सकते हैं। द पेरोक्साइड, द पर एसिड have the extra oxygen, and this extra oxygen will be given to alkene, and after giving to the alkene behaves as a nucleophile, and this oxygen behaves as a electrophile. So why there is the electrophilic and nucleophilic reaction, and there is the addition of the oxygen in the double bond and formation of the peroxide। बस, ठीक है? इतना काफी है। Then just moving towards the end of the discussion, and
We will start the Zoom video class at 7. Okay. Okay. Thank you.